Welcome to Tarot by Pixie, guys. And today's reading is going to be Christmas reading. So let's see what gifts you will get this Christmas. So आज की reading is going to be Christmas reading. और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको इस क्रिसमस यूनिवर्स क्या गिफ्ट भेजने वाली है. सो द फर्स्ट पाइल इज़ गोइंग टू बी दिस क्यूट लिटिल Santa. Second pile is going to be this golden drum, and third pile is going to be this candy. So I will give you 5 seconds to choose from the piles. Based on your intuition, you can choose whichever pile that attracts you the most, and then we will begin your reading. So I'm going to start with the reading. अगर आपने अभी भी नहीं choose किया है, so I suggest that you can pause the video and select the piles. I am going to keep the pile here so that you can see which pile is going on. So this is pile number 1. What gift is pile number 1 receiving this Christmas? We have Knight of Cups, Ten of Pentacles, the Fool, and then we have Two of Cups. Okay, let me arrange the cards. I think I'm going to keep the piles here so that I can arrange the cards. Very nice and warm cards, pile number 1. So we'll begin with your pile. So pile number 1, I can see that there is a proposal coming your way, and I don't know किसी वजह से आपकी रीडिंग में सिर्फ रोमांटिक कार्ड्स आए हैं, which started with Knight of Cups. So there can be a proposal coming your way. If you are in the age where you have to get married, there can be a proposal that can be of marriage coming your way, and ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं. एंड इस ईयर के एंड में, न्यू ईयर से पहले पहले आप किसी पार्टी में या किसी गैदरिंग में या किसी वेडिंग में आप इन इंसान से मिल सकते हैं, जहाँ से चीज़ें बहुत जल्दी जो हैं वो शुरू हो जाएंगी. हो सकता है कि आप थोड़े केयरलेस हों अभी कि मैं तो बाद में शादी करूँगा, या आई एम नॉट लुकिंग फॉर समवन इन माई लाइफ राइट नाउ. बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज़ बहुत अचानक से आपकी लाइफ में एक इंसान की एंट्री होने वाली है. एंड दिस कुड बी थ्रू फैमिली. इफ़ यू आर ऑलरेडी कमिटेड टू समवन, देन देयर इज़ अ चांस दैट यू गाइज विल टेक द रिलेशनशिप अहेड. आप एंगेजमेंट की तरफ सोचेंगे या फैमिलीज़ को मिलवाने की तरफ सोचेंगे. सो फॉर सम रीज़न पाइल नंबर 1 इज़ क्वाइट रोमांटिक. एंड इन टर्म्स ऑफ करियर, आई कैन सी दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस. कोई पार्टनरशिप या कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ, और आपसे कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस प्रपोजल पे और आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ अबंडेंस. और यही प्रपोजल या इसी प्रोजेक्ट के थ्रू आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, जिससे कि यू विल टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली. ऐसा कुछ ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है. अगर आप अपने फैमिली बिजनेस के अंदर फ्लरिश करना चाह रहे थे और अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, या अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है अपना फैमिली बिजनेस, सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइन कि हो सकता है कि आप कुछ दिनों में अपना फैमिली बिजनेस सीखना शुरू कर दें, या फिर आपको आपके फैमिली बिजनेस में कुछ शेयर मिल जाए. सो वेरी पॉजिटिव कार्ड्स पाइल नंबर 1. नाउ लेट मी सी a few more cards. We have nothing will come out of this situation, and a fiery climax approaches. So as I said, that whether you are
आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक इंसान जो कि आपका सोलमेट होने वाला है, या फिर किसी के साथ अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में डेस्टिन्ड है कि आप उनके साथ काम करेंगे, तो that is going to be very nice, and this is something that I can see coming for you. And see, in the bottom of the deck, bring love into the situation. And that surprisingly there are only love cards in your reading, so mostly career based reading नहीं है, लेकिन even if it is you are looking for some career based message here, it is more of a business partnership, finding the right partner, the right people, and getting emotional satisfaction from your work is what I can see. From angel deck, okay, I already have a card. Let us see what angels want to tell you. See, meditation brings answers, so there's a strong chance that there might be a little bit of confusion and a little bit of wandering around, जहाँ पे कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. सो उसमें आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलने वाली है. आपकी एंजल्स ये बोल रहे हैं, बाय दिस क्रिसमस, बाय दिस न्यू ईयर, बिफोर दिस ईयर एंड्स, अगर आप थोड़ी भी क्योटिक सिचुएशन में है, सो यू कैन मेडिटेट एंड गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, एंड बिग हैप्पी चेंजेस. सो यहाँ पे भी एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है कि आगे आपकी लव लाइफ और करियर में बहुत ज़्यादा एक हैप्पी चेंज आने वाला है. एंड देयर इज़ डेफिनेटली एरीज कार्ड हेयर which tells us that there is going to be new beginning. Then there is Fool card, new beginning. Then there is the Knight of Cups. So there's a lot of new beginning in love and career sort of energy here. So I hope you like this reading, pile number 1. और अगर आपने ज़रा से भी इस reading के साथ resonate किया है, so you can like and subscribe to this channel. And now we are going to move on to pile number 2. Welcome to your reading, pile number 2. So if you choose this golden drum, this reading is for you. I'm going to keep it here, and let us see what gifts will you receive this Christmas and before this year ends. आपको क्या gifts मिलने वाले हैं? We already have one card, and पहले वाले you can also watch pile number 1 because pile number 1 में भी फूल का कार्ड आया था. And then we have moon. Pile number 2, gifts, hanged man. Oh my god, what's going on? Pile number 2. Okay, there's a very heavy energy in this pile, but I'll just explain. And bottom of the deck we have King of Swords. Okay, pile number 2. I think 2025 आपके लिए बहुत खास तो नहीं रहा है. आपको बहुत स्टक फील होता है. इस साल बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रही. कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बनी. फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो. आपकी सोच, थिंकिंग जो है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नेगेटिव फ्रॉम मैनी ईयर्स. और इस साल तो मतलब आपने बहुत ज़्यादा फेयरफुल रहे हो, और आपने जैसा सोचा था कि ये साल आपका जाएगा वैसा ये नहीं गया, और बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो. आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें सुलझाने की कोशिश की हैं, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी में आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, या आपको कुछ और कुछ लोगों ने भी आपको इस साल काफ़ी आपको धोखा मिला है. लव लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकता है, और ऐसे लगा कि इस साल बस आपका जो टाइम था वो ख़राब था. होता है ना, बैड टाइमिंग करके. एंड इस साल से आप नेक्स्ट ईयर से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, और इस साल आपको बहुत ज़्यादा जस्टिस नहीं मिला है. तो इस टाइप की एनर्जी है, और अब आप चाहते हो कि ये साल बस ख़त्म हो जाए और मैं कुछ भी करके आगे बढ़ूँ. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. ये वाली विश जो है आपकी पूरी होने वाली है. आप एक न्यू बिगनिंग करेंगे, आप एक न्यू एनर्जी में आएंगे, आप बहुत ज़्यादा यूथफुल रहेंगे, और बिना किसी टेंशन के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं. और ये जो मून का कार्ड इतने सारे फियर्स को दिखाता है, और आपके आगे पीछे जितने भी लोग हैं,
हो सकता है नेबर्स हों, हो सकता है फ्रेंड्स हों, या आपकी लाइफ में कुछ सेट ऑफ लोग हैं जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा, आपका सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया था. दिस इज़ मोर अबाउट सेल्फ, यू नो. और स्पिरिचुअली आपको इस साल क्रिसमस पे ये गिफ्ट मिलने वाला है दैट यू आर गोइंग टू फाइनली सी कि आपने जितना भी हार्डवर्क इस साल में किया है, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, करियर वाइज, लव लाइफ, सारे अफेयर्स ऑफ लाइफ में आपको जो है वो फ्रूट्स मिलेंगे इस साल, और आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होने वाली है. और जितने भी डिसीव्ड लोग हैं आपकी लाइफ में वो आपकी लाइफ से निकाल दिए जाएंगे, और आप जितना भी स्ट्रगल कर रहे थे वो ख़त्म होगा, और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आपकी विश और मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी होने जा रही है. पाइल नंबर 2. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. ये स्टकनेस की फीलिंग से आप आगे बढ़ेंगे. शुरुआत में जनवरी फरवरी के मंथ में मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से कि आपको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगी, आपको जॉब मिलेगी. ऐसे ऐसे करते आपने जो भी अपने लिए सोचा था उसका जो फ्रूट, जो इसका भी अभी तक आप वेट कर रहे थे ना, वो आपकी लाइफ में पूरा होने के फुल चांसेस हैं. पाइल नंबर 2. सो दैट इज़ वॉट इज़ यू आर गोइंग टू रिसीव इन लाइफ. दिस फेज ऑफ स्टकनेस इज गोइंग टू गेट ओवर फॉर यू, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग शिफ्ट. पहले आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी और फिर धीरे धीरे आपकी सराउंडिंग्स में चीज़ें शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी. आपसे एक गाइडेंस आ रहा है कि आपका कर्मा चैरिटी से जुड़ा हुआ है. सो हो सकता है कि आप जितना भी कमाते हैं, तो जितना भी आपकी विल हो उतना आपको डोनेशन करना चाहिए किसी ज़रूरतमंद को, मंदिर में, या वेयर एवर यू फील लाइक. तो उससे आपका कर्मा जो है वो बैलेंस होगा, एंड चीज़ें जो हैं स्टक थी वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी. ट्रैवल भी दिख रहा है. हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो तो आप नेक्स्ट ईयर जाके उनको बताने वाले हैं, या चीज़ें खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगी, या वो आके आपको बोल देंगे. सो दैट इज़ what I can see for you. Let me see from angel guidance card कि it's time to take action. A new moon in Aries. Please also watch pile number 1 because कार्ड्स यहाँ पे फूल पहले रिपीट हुआ था, और फिर फूल के नीचे सेम एरीज का कार्ड पहले भी आया था, और अब भी ये आया है. एंड सी, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. सो आपसे यही कहा जा रहा है, here we have your dreams need a practical plan. So आपसे यही कहा जा रहा है, this is basically न्यू एनर्जी, एरीज की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है, एंड दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू कि आप न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, स्पेशली एरीज सीजन में मार्च के आसपास. और यहाँ पे डोंट लेट योर होल्ड पास्ट यू बैक. दिस इज़ केतु एनर्जी, एंड दैट ओनली टेल्स अस कि आपको ये साल आपका कैसा गया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका नेक्स्ट ईयर भी ख़राब जाएगा. उसको आप भूल जाइए. अगर आपको पास्ट की मेमोरीज़ या कुछ फियर्स या चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसको भी भूल जाइए, क्योंकि नेक्स्ट दिस ईयर बिफोर इट एंड्स योर एनर्जी इज़ गोइंग टू फ्लिप इन अ वेरी बिग मैनर. सो लेट मी टेक cards of what angel. So there is something better, and this has come just under the moon card, and I'll explain you why. Peaceful resolution. So अगर तो आपके करियर में you can see the horn honking. So I think this is a big sign. So अगर तो आपके करियर में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको बिल्कुल नीचे खींचते थे, तो उनसे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी. और अगर आपकी लाइफ में, लव लाइफ में किसी ने आपको धोखा दिया था, तो द मैसेज इज़ दैट समवन बेटर इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ. हो सकता है कि पास्ट पर्सन आपके कार्मिक हों, और ये जो पर्सन अभी आएंगे आपकी लाइफ में, इनके आने से आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा, और ये पर्सन आपको अपनी नेगेटिव हैबिट से भी बाहर निकालेंगे. एंड हो सकता है कि ये पर्सन अगेन फायर साइन के हों, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. सो आपके लिए इस क्रिसमस के आसपास एक एनर्जेटिक शिफ्ट जो कि आपकी लाइफ नेक्स्ट ईयर बिल्कुल फ्लिप कर देगा, वो आ रहा है. पाइल नंबर 2. सो इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस रीडिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. Pile number 3, welcome to your reading, and if you chose this candy, this reading is for you, so I'm going to keep it here for you to know that this is your pile.
चलिए देखते हैं क्रिसमस पे आपको यूनिवर्स क्या गिफ्ट देने वाली है. Pile number 3. What gifts are coming for pile number 3 this Christmas? King of Cups. Okay, 7 of Wands, Knight of Cups, and 2 of Cups. Knight of Cups with 2 of Cups also came in pile number 1, so you can also see that. Pile number 3, what I can sense from the cards, and let me show you the bottom of the deck, which is Ace of Cups, again a cup card. So the major guidance for you is कि सबसे पहले तो आपके लिए क्या आने वाला है. That I'm going to tell you that if you like someone, आप किसी को पसंद करते हैं and you were struggling to express yourself to them, then this Christmas there's going to be something that will happen to you, that you will have the courage to go and express your love to this person and you will make the first move. If that is not the case, if you think that you are going to wait and you're not the one who has already expressed, आपने already express कर दिया लेकिन आप दूसरे इंसान का वेट कर रहे हो कि वो आपकी तरफ आए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, आपको प्रपोज करेंगे, आपको बताएंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा था, उनकी लाइफ की क्या स्ट्रगल्स हैं और उनकी करियर और उनके वर्क प्लेस पे क्या इश्यूज़ थे जिसकी वजह से कि वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, और फिर वो आपको हो सकता है कि बताएं कि क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद आप लोग रिलेशनशिप में आएँ. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बिगनिंग. और हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ से रिमूव होगी. आई सी कि करियर में भी कुछ आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या आप जिनको पसंद करते हैं उन्हीं के साथ, अगर आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, उन्हीं के साथ कुछ बिजनेस वेंचर या कुछ छोटा मोटा काम ऐसे आप शुरू करें एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल फॉर यू. आई कैन सी दैट. बस एक ही प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रही है एंड दैट इज़ कि आप एक्शन नहीं लेते हैं. सो आपसे यही कहा जा रहा है कि इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन टूवर्ड्स वॉट यू हैव ड्रीम्ड ऑफ. अगर तो आप किसी को पसंद करते हैं तो जाके बताइए. अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो आप वेट कीजिए इस क्रिसमस न्यू ईयर के बीच में. दैट वन लास्ट वीक ऑफ दिस ईयर इज़ गोइंग टू गिव, हो सकता है कि आपके पर्सन आपके पास आके आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेट अस सी मोर. Actually, I'm going to use the other deck and I will come to this little later. So pile number 3, what is going to come? Pile number 3. It's time to take action, and I don't know why this card, even though I have shuffled this deck so many times, ये फर्स्ट पाइल में भी आया है और ये सेकेंड पाइल में भी आया था और ये थर्ड पाइल में दोबारा रिपीट हुआ है. सो देयर इज़ न्यू बिगनिंग्स कमिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ जिस भी लाइफ में आप स्टक थे वो फाइनली रिलीज़ हो रहा है. योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन में हो और सेपरेशन में होने के बाद अब आप लोगों का रीयूनियन दोबारा से हो जाए, आपके बीच में जो भी लोग थे वो खुद ब खुद हट जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी जो है वो मुझे दिख रही है. इट्स टाइम टू टेक एक्शन एक्चुअली इज़ फॉर पीपल हु आर थिंकिंग दैट दे शुड एक्सप्रेस देमसेल्व्स. This is a sign that you should go ahead and express yourself. Oh my god, already 3 cards. There is a no card, there is wait, and it's up to you. Okay, since I have these 3 cards here, I would like to take clarifiers. And on the bottom of the deck we have no need to worry. So pile number 3, I would like to clarify because there are a lot of cards here. Wait, up to you, and no.
वैसे तो मैंने किसी पाइल का ये नहीं किया है, बट आई विल डू इट फॉर यू. What is the warning that you are trying to give universe? Pile number 3. Okay. Okay. So the first message I am getting is, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हों, या आपके पर्सन जो हैं वो दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हों, तो वहाँ से क्लैरिटी आपको या उनको मिलती हुई दिख रही है. और इसके बाद चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगी. और हो सकता है कि ये पर्सन जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो, या करियर से रिलेटेड ये है कि इफ़ यू वर सीकिंग सम गाइड और स्पिरिचुअल गुरु और इमोशनल हेल्थ, या किसी ऐसे गाइड या मेंटोर की आपकी लाइफ में कमी थी, तो वो भी मुझे आते हुए दिख रहे हैं. और ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन होंगे जो कि आपकी लाइफ में आएंगे. And that is going to sort a lot of things in your life, and this pile is more about emotional cleansing, clearing the clutter away and then finally moving on. वैसे तो moving on की एनर्जी and new beginnings की एनर्जी तीनों पाइल में है, लेकिन तीनों के बहुत अलग अलग स्फेयर में ये रीडिंग आई है. सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. इफ़ यू रेजोनेट with this reading, like, share and subscribe to this channel. Take care. Bye bye.